Hello dear students, in continuation in our video lecture series, again I am continuing mode. You must understood that in case of frequency distribution series, inspection method only helps in identification of modal class interval, not the exact mode value. इंस्पेक्शन मेथड आप जानते हैं कि क्या हो, हमने यस्टरडे भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से दें. इंस्पेक्शन मेथड फॉर फाइंडिंग द मोड when frequency of continuous series increase and decrease in some systematic order, the modal class may be found merely by inspection of the series. The following illustration is an example of such series where modal class is found by inspection. Having found the modal class, the actual value of the mode is calculated using the given formula here. Illustration. See the question: class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Frequencies 2, 5, 7, 5, 2. Once again, see the frequency 2, 5, 7, 5, 2. We can say frequency of continuous series is increasing and decreasing in systematic order. That's why we can use here the inspection method. Calculation of mode, we write the class interval and frequency against them. At a glance, the series reveals that 2030 is modal class. Why it is modal class? Because it has maximum frequency. How much? It is 7. Following formula is used to calculate the mode value. So here very clearly F1 means frequency of the modal class, which is 7. 5 is the frequency of the just preceding class, and again F2 is also 5 here in this question. We replace the values in the given formula and calculate the median. Mode calculate करते हैं. Mode is symbolized by Z. So very clearly you can solve it. Mode is 25. Now we are discussing the grouping method. Inspection method of finding out modal class fails in case the frequency of the series are not increasing or decreasing in some systematic pattern. अगर कोई सिस्टमेटिक पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें इंस्पेक्शन से एक्यूरेट मॉडल क्लास का पता नहीं लगता, तो इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाती है. इंस्पेक्शन मेथड फेल्स also when there are more than one class intervals with higher frequencies in the distribution. In such cases, modal class is determined using the grouping method. Thus, the grouping method in case of discrete frequency series, it is the same in case of the continuous series as well. After the modal class has been identified, the actual value of the mode is calculated using the same formula. Formula is given here. Z is equal to L1 plus F1 minus F0 whole upon 2F1 minus F0 minus F2 into I. Illustration. Look at the question. Class interval 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35. Frequencies 1, 2, 10, 4, 10, 9, 2. Look at the frequency. Frequency is not increasing or decreasing in systematic order. And one more thing, there are two values, two class interval 10 to 15 and 20 to 25 having the same frequency 10. That's why we cannot by inspection say which is the modal class.
So we have to use the grouping method. Solution. Grouping of frequency is essential in this series because there are two class intervals, that is 10 to 15 and 20 to 25 with highest frequency 10. Hence the grouping table of the subsequent analysis table are followed. अब ग्रुपिंग मेथड जैसा आपको यस्टरडे हमने डिस्कस किया था उसी तरह से यहाँ पर हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम फर्स्ट कॉलम में एक क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कॉलम को नंबर देते हैं, कॉलम 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम तक हम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में गिवन फ्रीक्वेंसीज जो क्वेश्चन में दी होती हैं उसी को लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज थी वो फर्स्ट कॉलम के नीचे हमने लिख दिया है 1 2 10 4 10 9 2। इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम राउंड अप कर लेते हैं। सेकंड कॉलम में अब हम 1 और 2 का पेयर लेंगे, माने क्लास इंटरवल 1 और क्लास इंटरवल सेकंड के सामने वाली फ्रीक्वेंसीज को लिखेंगे और उनका टोटल करेंगे, जो कि यहाँ पर 1 + 2 = 3 हो गई। फिर नेक्स्ट 2 लेंगे हम, जो यहाँ पर 10 + 4 है = 14। फिर नेक्स्ट 2 हम लेंगे जो 10 + 9 है, दैट इज़ 19। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का सेकंड कॉलम जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड को टोटल करके लिखा था। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 19 है, 19 को या तो आप बोल्ड कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए या इन सर्किल कर दीजिए। अब हम आते हैं कॉलम नंबर 3 में। तो सबसे पहले हमने 1 2 लिया, अब हम 2 3 लेंगे। कहने का मतलब हुआ क्लास इंटरवल सेकंड और थर्ड इन टूज, इनकी फ्रीक्वेंसीज का टोटल लिखेंगे, जो कि यहाँ पे 2 और 10 हैं, दैट इज़ 12। फिर नेक्स्ट टूज हैं हमारे पास 4 and 10, that is 14। नेक्स्ट टूज हैं हमारे पास 9 and 2, that is 11। यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है 14 फ्रीक्वेंसीज की अंडर कॉलम 3, उसको हमने इन सर्किल कर दिया। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में दी गई फ्रीक्वेंसी लिखा था, फिर हमने फर्स्ट और सेकंड का टोटल लिखा था टूज में, फिर अगेन हम टूज में गए थे, 2 के पेयर बनाए थे, लेकिन फर्स्ट वाले को छोड़ दिया था, सेकेंड और थर्ड से स्टार्ट किया था। फिर उसी तरह से नेक्स्ट में हम जाते हैं। अब हम फिर 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3। अब 3 3 के पेयर्स की फ्रीक्वेंसीज का टोटल हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल 1 2 3 इनकी फ्रीक्वेंसीज का टोटल लिखेंगे, जो कि यहाँ पर है 1 + 2 + 10, दैट इज़ 13। फिर नेक्स्ट 3 लेंगे हम, जो कि यहाँ पर हैं आपके पास 4 10 + 9, दैट इज़ 23। इसमें आगे के अगर पेयर नहीं बन रहे हैं तो हम उन्हें छोड़ देंगे। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 23 है, 23 को हमने सर्किल कर लिया। अब हमने 1 2 3 ले लिया है, अब हम 1 को छोड़ देंगे, 2 3 4 लेंगे। ये आपको पैटर्न को याद रखना होगा। फिफ्थ कॉलम में हमको क्या लेना पड़ता है, 2 3 4। आप इनको नंबर से भी याद कर सकते हैं, 12 23 123 234 345, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। आप अपना एक सीक्रेट बना सकते हैं किस तरह से आपको लर्न करना है। वैसे बहुत सिंपल है, जो हमने आपको पहले भी बताया था। फर्स्ट कॉलम में आपको क्वेश्चन की दी हुई फ्रीक्वेंसी लिखना है, फिर 1 2 करना है, फिर एक को छोड़ के 1 2 1 2 1 2 करना है, फिर 1 2 3 करना है, फिर 1 2 3 में अगली बार हम फर्स्ट को छोड़ देंगे, 2 3 4 करेंगे, फिर अगली बार हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को छोड़ देंगे और 3 4 5 लेंगे। यानी 1 में क्वेश्चन वाली फ्रीक्वेंसी हो जाती है, फिर 2 2 का ग्रुप लेते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 2 का ग्रुप लेते हैं, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 3 के 3 ग्रुप बनाते हैं। पहले ग्रुप को 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, दूसरे ग्रुप को 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, तीसरे ग्रुप को 3 4 5 से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप इसे याद रख लेंगे। ये सिंपल है। ये अब हमारी फ्रीक्वेंसीज बन गई हैं। अब हम इनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करते समय आपको क्या करना है, आपको अपनी उंगली लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर जाना है। 0 से 5 के सामने अपनी उंगली को कॉलम 1 से लेकर कॉलम 6 तक घुमाइए, लेफ़्ट टू राइट। क्या यहाँ पर कोई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिली? नहीं मिली। नहीं मिली तो इस कॉलम के नीचे एक भी टिक नहीं आएगा, 0 से 5 के नीचे। फिर आप 0 से
5 to 10 के सामने अपनी उंगली को लेफ्ट से लेकर राइट तक लेकर जाइए। कॉलम 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, 4 के नीचे, 5 के नीचे, 6 के नीचे। क्या आपको कोई नहीं मिली तो ये कॉलम भी ब्लैंक आ जाएगा। अब आप अपनी फिंगर को लेफ़्ट टू राइट ले जाएंगे 10 to 15 के सामने से। क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिली? यस, हमें फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 मिली। तो अब आप फर्स्ट कॉलम में 10 to 15 के नीचे, फर्स्ट कॉलम के सामने 10 to 15 के नीचे एक राइट का निशान लगा देंगे। अब आगे चलिए, आप उंगली को आगे लेकर जाते हैं, आपको इसके बाद और कहीं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं मिली। लेकिन ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 आपको मिली है, एक जगह और मिल रही है। वो कहाँ पर मिल रही है? वो मिल रही है, अभी अपन उसको बाद में लिख लेंगे। अभी हम 15 to 20 को चेक कर लेते हैं। 15 to 20 में कहाँ पर हमारे को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल रही है? तो हम देख रहे हैं सेकंड कॉलम में 15 to 20 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है। थर्ड कॉलम में हमें दिख रहा है 14, जिसमें कि 15 to 20 भी आ रहा है। और फोर्थ कॉलम में भी हमें दिख रहा है 23, इसमें भी 15 to 20 आ रहा है। फिफ्थ कॉलम में हमें दिख रहा है, क्या देखेंगे तो 2, 3, 4, हाँ आ रहा है, इसमें 21 नहीं आ रहा है। और सिक्स कॉलम में भी आ रहा है। तो इन फ्रीक्वेंसीज़ को हम टिक कर लेंगे। 1, 2, 3, 3 जगह मिला तो 3 आ गया हमारे पास। अब हम 20 to 25 को चेक करते हैं। 20 to 25 फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सेकंड कॉलम में भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है, क्योंकि ये जो हमने ब्रैकेट बनाया है, ब्रिक ब्रैकेट, इसमें दिख रहा है कि हमारे पास 20, 25 और 20, 30 इन दोनों में 10 भी है और इन दोनों में 19 भी है। फिर 25 हमारे पास थर्ड ग्रुप में 14 के साथ भी है। फिर 25 हमारे पास फोर्थ ग्रुप, जहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, फोर्थ ग्रुप में भी है। और 20 से 25 फिफ्थ ग्रुप में भी है। तो इस तरह से हमने इन सब के सामने लगा दिया। और ये सिक्स ग्रुप में भी था 20 से, क्योंकि 4, 3, 4, 5 नंबर पर यही है 20 to 25। तो यहाँ भी हमें ये मिल गया। इन सब के सामने हमने राइट का निशान लगा दिया। इस तरह से आप सबके राइट के निशान लगा लेंगे। अब इन राइट के या जो टैली मार्क्स हैं, इनकी काउंटिंग कर लेंगे। तो सबसे अधिक टैली मार्क्स या टिक का निशान जो हमें मिल रहा है वो 20 से 25 में मिल रहा है, जो कि 6 है। तो यह हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप हो गया, और इसीलिए ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो जो हमारा मॉडल क्लास है वो 20 से 25 वाला माना जाएगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे पास काम बिल्कुल आसान हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे एनालिसिस करने के बाद। एनालिसिस टेबल शोज दैट ऑल क्लास इंटरवल 20 to 25 has the highest frequency 6. It has got the maximum right marks. Accordingly, 20-25 is the model class interval of the series. The actual value of the mode is given by the formula, where L1 is the lower limit of the model group, which is 20. F1 is the frequency of the model class, which is 10. F0 is the frequency of the preceding the model class, that is 15 to 20 की preceding class की जो frequency है वो 4 है। F2 is the frequency of the following of the model class, which is 9. Class interval है 25 minus 20 is 5. Replacing all values in the formula, we get the answer mode Z is equal to 24.29. Here are some questions for you. You have to solve the problems and make the answer. If you find any difficulty, you may consult. Now, calculation of mode when class interval are unequal. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। फिर से सुनिए ध्यान से।
कैलकुलेशन ऑफ मोड आर अनइक्वल, यानी क्लास इंटरवल अगर अनइक्वल हैं तो मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल द मोड विल बी डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट मेथड। मेथड क्या है? टू कैलकुलेट मोड अनइक्वल क्लासेस और क्लास इंटरवल्स आर मेड इक्वल एज द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशन को देखकर आपको अपने कॉमन सेंस और मैथमेटिकल सेंस से क्लास इंटरवल को एक जैसे बनाना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे 4 to 8 डिफरेंस 4 का है, 8 to 12 डिफरेंस 4 का है, 12 to 14 डिफरेंस 2 का है, 14 to 16 डिफरेंस 2 का है, फिर 16 to 24 का डिफरेंस है। इस तरह से अगर आप ध्यान से देखते चलेंगे तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें और समझें तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर 8 का क्लास इंटरवल बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड को मिला लें तो फर्स्ट की लोअर लिमिट है 4, सेकंड की लोअर लिमिट है 8, तो 4 to 8 हो जाएगा। फिर 8 to 16 हमको बनाना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 8 to 16, मतलब हम जहाँ फ्रीक्वेंसी 3 लिखी है उसके नीचे तक आ जाएंगे। फिर 16 + 8 करें तो 24, जहाँ फ्रीक्वेंसी 1 लिखी है वहाँ तक आ जाएंगे। 24 में अगर 8 ऐड करें तो 24 + 8 32, जहाँ फ्रीक्वेंसी 13 लिखी वहाँ तक हम आ जाएंगे। और इसी तरह से आगे आप 32 से 40 चले जाएंगे और 40 से 48 तक चले जाएंगे। तो इस तरह से हम एक इक्वल क्लास इंटरवल बना सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में किस तरह का कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है। ये आपको अपने कॉमन सेंस के से मैथमेटिकल सेंस से देखकर सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 8 का टेबल इजीली हमें दिखाई दे रहा है, 8, 16, 24, 32, 40, 48, तो हमने 8 के इंटरवल्स बना लिए। तो अब उनके बीच की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो ऐड हो जाएंगी। कहने का मतलब अगर हम अगर 4 to 8 चाहते हैं तो ये दो फ्रीक्वेंसी हमारी ऐड हो जाएगी। 8 to 16 अगर हम करना चाहते हैं तो ये तीनों फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाएंगी। 16 to 24 में ये ऐड हो जाएंगी, 24 से 32 तक ये ऐड हो जाएंगी और इसी तरह से आगे के क्रम में हो जाएगी। तो इंटरवल हो गया है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। फ्रीक्वेंसीज जैसा मैंने बताया था 2 + 4 6 हो जाएगा, फिर 7 + 5 + 8 20 हो जाएगा, 3 + 2 = 5 हो जाएगा, फिर 13 + 1 14 हो जाएगा और उसी तरह से 5 + 3 8 हो जाएगा, 9 + 3 12 हो जाएगा। ये क्यों किया हमने, ये आप जान गए हैं। अब हम इनका ग्रुपिंग कर रहे हैं। ग्रुपिंग करने की मेथड वही है, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसको हमने फर्स्ट कॉलम बोला है, फिर सेकंड में हम 2-2 के ग्रुप बनाएंगे, 1 और 2 से स्टार्ट करेंगे। थर्ड कॉलम में हम 2-2 के ग्रुप बनाएंगे लेकिन फर्स्ट को छोड़ देंगे, 2 3 से स्टार्ट करेंगे। फिर उसी तरह से फोर्थ कॉलम में हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कॉलम में हम 3-3 के ग्रुप बनाते हैं। पहला वाला पहले से शुरू होता है, यानी फोर्थ कॉलम 1 2 3, फिफ्थ कॉलम शुरू होता है 2 3 4 से और सिक्स कॉलम शुरू होता है 3 4 5 से। इनके हमने ग्रुपिंग कर लिया है, इनकी फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लिया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को राउंड कर दिया। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही हैं जितने बार, उतने हम उनके नीचे राइट के निशान लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 16, 8 to 16 के नीचे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें मिली है 4। तो ये हमारा 8 to 16 जो है वो मॉडल क्लास हो गया या क्लास इंटरवल हो गया। फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, इसमें हमने एक नई जानकारी सीखी है। इसको आप 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे।
आगे के कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा।